Hi everyone. So today we are going to be starting with the chapter Meeting Life Challenges. So इस chapter में these are the things that we are going to learn. First we are going to talk about stress. What is the nature of stress? What is stress? What are the types of stress? What are the sources of stress as life challenges? एंड देन हम देखेंगे कि कैसे स्ट्रेस हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, कैसे हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है और हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे फंक्शनिंग को हिंडर करता है. देन वी आर गोइंग टू लुक एट द वेज थ्रू विच वी कैन कोप विद स्ट्रेस बिकॉज it's a problem faced by all of us, so we must know effective strategies to cope with stress. Then we will टॉक अबाउट द लाइफ स्किल्स जो एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए हेल्प करता है, और उसके बाद हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करता है. सो दीज आर द कॉन्टेंट्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में एक एग्जाम्पल दिया गया है एक स्टूडेंट का. द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज राज. सो लेट अस रीड. Raj has been studying for his final examination, which is going to take place tomorrow morning. He studies till 1 a.m. in the night, unable to concentrate anymore. He sets the alarm for 6 a.m. and tries to go off to sleep. As he is very tense, he keeps tossing and turning in bed. Images flash through his mind of not being able to secure the marks he needs to opt for the studies of his choice. He blames himself for fooling around with his friends and not preparing thoroughly for the examination. In the morning, he wakes up with a heavy head, misses breakfast, and barely makes it in time to school for his examination. He opens the question paper, his heart pounding, hands clammy with sweat, and then he feels his mind has gone completely blank. So this is a situation that many of you might have experienced, and it's quite a common situation that students face before the examination. They feel a sense of guilt for not having studied seriously, and before the examination they feel that they might not be able to pass the examination. So this provides them with a sense of stress. So this is a stressful situation, and many people are able to deal with this stressful situation very effectively, and they might even be able to utilize this stress to enhance their motivation and to perform well. But there are some people who succumb to the stressful life situations and they are unable to perform well, and they underperform. They cannot even achieve their full potential. So stress has both its good side as well as its bad side. तो स्ट्रेस से हमारा मोटिवेशन लेवल मेंटेन रहता है, जिससे हम अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. बट टू मच स्ट्रेस इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द बॉडी. इट अफेक्ट्स अस साइकोलॉजिकली ऑल्सो, फिजियोलॉजिकली ऑल्सो. सो इसीलिए वी मस्ट नो हाउ टू कोप विद स्ट्रेस एंड हाउ टू इफेक्टिवली यूटिलाइज द स्ट्रेस or the stressful life situations that we are facing for our betterment to achieve our full potential. Now, some of you may have lived through an experience such as Raj's. The challenge posed by examination is common to all the students. You are perhaps already thinking about a career. What if you are denied this choice? Will you give up? Life poses challenges all the time. Think of a child who loses her or his parents at a young age with no one to take care of her or him. A young woman who loses her husband in a car accident, parents who bring up children who are physically or mentally challenged, young girls or boys who have to spend long nights in call centers and then catch up on their sleep during the daytime. Look around yourself and you will find that life is a big challenge. All of us try to meet these challenges in our own way. Some of us succeed while others succumb to such life stresses. Life challenges are not necessarily stressful. Much depends on how a challenge is viewed. A number 11 batsman in a cricket team will view facing a fast bowler's delivery differently than would an opening batsman who will look forward to such a challenge. It is said that one's best comes out when one is challenged. You will like to consider in this chapter how a life condition turns into a challenge or a cause of stress. Further, we will see how people respond to various life challenges as well as stressful situations. तो यहाँ पर यही बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशंस में अच्छे से डील करके अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाते हैं. बट देयर आर ऑल्सो सम पीपल हु सकम टू दीज स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ एंड दे अंडर परफॉर्म. वो उतना भी परफॉर्म नहीं कर पाते जो कि वो केपेबल है परफॉर्म करने के लिए. सो येस, स्ट्रेस हैज़ बोथ इट्स गुड एज वेल एज बैड साइड. और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ऑफ अ बैट्समैन.
a cricket team में there are several batsmen, right? There is an opening batsman, and there are several other batsmen also. तो यहाँ पर बोला गया है कि suppose a batsman has to face a fast bowler's delivery, तो एक opening batsman का जो experience होगा वो different होगा as compared to the number 11 batsman. The number 11 batsman might be nervous, and he or she might face the fast bowler's delivery in a stressful manner. Whereas the opening batsman may think of it as a challenge, and it might even help him to perform better, right? So, this is an example, a real life example. Yes, और यहाँ पर और भी बहुत सारे examples दिए गए हैं. Okay, so yeah, this was about the introduction, and हमें पता है कि stress से deal करने के लिए we all have our unique methods, and some of us are able to deal effectively with stress while others are not, right? तो जब we are experiencing a stressful life situation, बहुत सारे responses होते हैं जो हम show करते हैं इन challenges के against. ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं. सो दीज रिस्पॉन्सेज वी विल स्टडी लेटर इन द चैप्टर, बट फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रेस, व्हाट इज द नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेज. ओके, यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है. While waiting to cross the road on a busy Monday morning, you may be temporarily stressed, but because you are alert, vigilant, and aware of the danger, you are able to cross the road safely. So suppose you have to cross the road, and you are mildly stressed while crossing the road. Everyone is stressed because of the fast moving vehicles, but this stress is good. तो वही बोला गया है, कुछ ऐसे भी स्ट्रेसेस है जो कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मोटिवेशन को एनहांस करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए यूजफुल होता है. जैसे कि एग्जाम्पल दिया रोड क्रॉसिंग का. व्हेन यू आर टेम्पररीली स्ट्रेस्ड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, इट हेल्प्स यू टू बी अलर्ट, जिससे यू विल prevent accidents, right? So you will be able to cross the road safely. So this amount of stress helped you to protect yourself from any road hazard or danger. So faced with any challenge, we put in additional efforts and mobilize all our resources in the support system to meet the challenges. तो यहाँ पर stress को अभी define किया गया है. All the challenges, problems, and difficult circumstances put us to stress, thus if handled properly, stress increases the probability of one's survival. और example इसका हमने देख लिया when we cross the road. Stress is like electricity. स्ट्रेस को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर किया गया है. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है जो जो क्या करता है, अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हेल्प करता है फंक्शन करने में. बट जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ टू हाई, इससे अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्यूज़ हो जाते हैं. बल्ब्स, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक फ्रिजेस, इन्वर्टर्स एक्सेट्रा, ये सब खराब हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं इफ़ टू मच इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड. सिमिलरली थोड़े से अमाउंट में स्ट्रेस हमारे फंक्शनिंग के लिए अच्छा होता है, इट इज़ बेनिफिशियल. बट व्हेन दिस लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ वेरी हाई, इट कैन डैमेज आस फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली. तो उससे हम अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं. So this is what has been said in this paragraph. तो यहाँ पर stress is like electricity. It gives energy, increases human arousal and affects performance. However, if the electric current is too high, it can fuse bulbs, damage appliances, etc. So similarly, high stress too can produce unpleasant effects and cause our performance to deteriorate. मतलब हमारा performance खराब हो जाएगा if we are under too much stress. Conversely, too little stress may cause one to feel somewhat listless and low on motivation, which may lead us to perform slowly and less efficiently. थोड़े अमाउंट में स्ट्रेस तो यूजफुल होता है हमारे परफॉर्मेंस को एनहांस करने में, बट अगर बहुत ही कम स्ट्रेस हुआ एक इंसान की लाइफ में, या फिर कुछ एकदम भी अगर स्ट्रेस नहीं हुआ एक इंसान की लाइफ में, देन इट विल लीड टू लो मोटिवेशन. एकदम कम स्ट्रेस हुआ तो फिर इंसान मोटिवेशन ढूंढता रह जाएगा, मोटिवेशन ही नहीं ढूंढ पाएगा, एंड इट विल मेक द पर्सन लेजी, एंड देयरफॉर उस केस में भी वो इंसान का परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट होगा. तो ज़्यादा स्ट्रेस से भी परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हो सकता है, एकदम स्ट्रेस नहीं होने से या फिर एकदम ही कम स्ट्रेस होने से भी एक इंसान का परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हो सकता है. तो स्ट्रेस एक यूजफुल रिसोर्स होता है हमारे मोटिवेशन को, हमारे परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, जब वो एकदम एडिकेट अमाउंट्स में
प्रेजेंट हो, मतलब नॉट टू हाई नॉट टू लो। तो एडिकेट अमाउंट्स में स्ट्रेस हमारे लिए यूजफुल है, बट ज़्यादा स्ट्रेस या फिर ज़्यादा कम स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। And we have also talked about the examples of the different situations जहाँ पर we are faced with stress, right? And how it helps us to overcome the life challenges. Now, it is important to remember that not all stress is inherently bad or destructive. Now, अगर मैंने stress की बात की तो stress भी दो type के होते हैं. तो one is eustress and the other is distress. So whenever someone asks you कि what are the two types of stress, we'll have to answer कि stress is of two types. One is eustress, the other is distress. So eustress is the good stress. Eustress is the good stress and distress is the bad stress या फिर destructive stress. Okay? So it is important to remember that not all stress is inherently bad or destructive. Eustress is the term used to describe the level of stress that is good for you and is one of a person's best assets for achieving peak performance and managing minor crisis. Eustress, however, has the potential of turning into distress. It is this latter in manifestation of stress that causes our bodies wear and tear. The stress can be described as how will you describe stress? You will describe stress as the pattern of a person's pattern of responses an organism makes to stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope. तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि स्ट्रेस इनहेरेंटली गुड या फिर तो यहाँ पर लिखा गया है कि हर स्ट्रेस बैड या डिस्ट्रक्टिव नहीं होता. ऐसा स्ट्रेस जो हमारे लिए यूजफुल होता है, जो गुड स्ट्रेस होता है, उसे हम यूस्ट्रेस कहते हैं, और जो बैड या फिर डिस्ट्रक्टिव टाइप का स्ट्रेस होता है उसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं. तो यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस में यही हमारा अंतर है. तो यूस्ट्रेस इज द गुड स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस इज द बैड स्ट्रेस. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. और यूस्ट्रेस के नाते ही हम अपनी लाइफ में माइनर क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं. ये हमारे मोटिवेशन लेवल को भी इंक्रीज करता है, एनहांस करता है. बट डिस्ट्रेस जो होता है वो बैड स्ट्रेस होता है और इससे हमारे बॉडी का वेयर एंड टेयर यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी जनरेट होता है. और ये डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस होता है, मतलब ये इट टेक्स अ टोल ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सो वी मस्ट ऑलवेज strive फॉर यूस्ट्रेस एंड नॉट डिस्ट्रेस, बिकॉज यूस्ट्रेस इज द गुड टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस इज द बैड टाइप ऑफ स्ट्रेस. अब हमने देख लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. नाउ वी विल ऑल्सो डिफाइन कि स्ट्रेस क्या होता है. तो स्ट्रेस को एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है कि स्ट्रेस एक ऐसा पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज है, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं या जिस तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं एक सिचुएशन के नाते या फिर एक स्टिम्युलस के नाते, एंड ये स्टिम्युलस हमारे इक्विलिब्रियम को या स्टेबिलिटी को हिंडर करता है और ये एक्सीड करता है हमारे कोपिंग एबिलिटी को. तो स्ट्रेस एक ऐसा पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स है जो कि हम जनरेट करते हैं अगेंस्ट अ स्टिम्युलस इवेंट जो कि हमारे स्टेबिलिटी को हिंडर करता है. इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबिलिटी, और ये हमारे कोपिंग एबिलिटी को एक्सीड करता है. अब नेचर ऑफ स्ट्रेस. तो स्ट्रेस जो है, जो हमने वर्ड देखा स्ट्रेस, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है एंड उस लैटिन वर्ड का नाम है स्ट्रिक्टस. स्ट्रिक्टस मतलब टाइट या नैरो, और स्ट्रिक्टस तो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है टाइट और नैरो, और इसी का वर्ब फॉर्म है स्ट्रिंज है, इसका मतलब होता है टू टाइटन. तो इस लैटिन वर्ड से भी हमें समझ में आता है कि what a person feels when he or she is stressed. So whenever you are stressed, you might have a feeling of tightness, right? So this is exactly the feeling of stress. So these root words reflect the internal feelings of tightness and constriction of the muscles and breathing reported by many people under stress. तो जब भी एक इंसान स्ट्रेस में होता है उसके मसल्स टाइटन हो जाते हैं, एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और ब्रीदिंग में भी हिंड्रेंस दिखाई देता है, टाइटनेस, कंस्ट्रिक्शन दिखाई देता है. सो येस, स्ट्रेस अफेक्ट्स द पर्सन फिजियोलॉजिकली, बॉडीली फंक्शंस भी डिसरप्ट होते हैं ड्यू टू स्ट्रेस. अच्छा, अब स्ट्रेसेस क्या होते हैं? स्ट्रेसेस कुछ ऐसे स्टिम्युलस इवेंट होते हैं जो कि एक इंसान को स्ट्रेस दिलाते हैं.
तो stresses are the events responsible for the stress reaction or response. Stress के नाते the body or the organism or the individual will produce a response, और जो इवेंट, जो स्टिम्युलस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जेनरेट करता है, उस इवेंट या फिर उस स्टिम्युलस को हम स्ट्रेसर कहते हैं. ये स्ट्रेसर दूसरा कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो मतलब इन कंक्लूजन, वट एवर इवेंट और द स्टिम्युलस which causes the body to give the stress response, which that particular stimulus will be called as a stressor. The stressors are disruptive in nature, जो कि person के equilibrium को क्या करते हैं, disrupt करते हैं, stability को disrupt करते हैं, and it exceeds the person's ability to cope. The stresses are events that cause our body to give the stress response. Such events include noise, है ना, whenever we are commuting, जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं टू आवर वर्क प्लेस, टू स्कूल्स और वट एवर, so we sometimes face stress because of the traffic, because of the noisy, crowded surroundings, right? So all these daily events भी हमें stress provide करते हैं. तो such events जो स्ट्रेसेस की तरह एक्ट करते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? नॉइज हो सकता है, क्राउडिंग हो सकता है, अ बैड रिलेशनशिप, और द डेली कम्यूटिंग टू स्कूल और ऑफिस. द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसेस इज कॉल्ड स्ट्रेन. सो जिस तरह से हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्ट्रेसर के अगेंस्ट, उसी को हम स्ट्रेन बोलेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन द एग्जाम्स दे माइट गिव MCQs या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कि द रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर इज कॉल्ड डैश. तो तब हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रेन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर फेमिलियर विथ ईच एंड एवरी सेंटेंस इन द NCERT टेक्स्ट बुक, बिकॉज हर एक लाइन से क्वेश्चन उठ के आ सकता है एग्जाम्स में. And if you read the NCERT textbook like it's your Bible, it will give you a sense of relief, because you will now be very confident that you are aware of each and every topic, and no matter what the question is in the exam, you will be able to answer. So it's very important that you read the NCERT textbook line by line. Okay, continuing further, stress has come to be associated with both the causes as well as effects. तो जब हम स्ट्रेस को पढ़ते हैं, तो हम स्ट्रेस को जब पढ़ते हैं तो हम तो फोकस करते हैं कि स्ट्रेस, वाई इज स्ट्रेस कॉज्ड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस. बट हम स्ट्रेस को पढ़ने के टाइम व्हाट आर द इफेक्ट्स और द इम्प्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेस, उसे भी फोकस करते हैं. सो स्ट्रेस हैज़ कम टू बी एसोसिएटेड विथ बोथ द कॉजेज एज वेल एज इफेक्ट्स. तो हम स्ट्रेस के कॉजेज को भी पढ़ते हैं और स्ट्रेस के इम्प्लीकेशंस या फिर इफेक्ट्स को भी पढ़ते हैं. हाउएवर दिस व्यू ऑफ स्ट्रेस कैन कॉज कन्फ्यूजन. Now, ये नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस नेम. Hans Selye. Hans Selye is known as the father of modern stress research. उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च के नाते, and therefore he is also known as the father of modern stress research. Very important name कि Hans Selye is known as the father of modern stress research. तो उन्होंने स्ट्रेस को डिफाइन अलग तरीके से किया. उन्होंने डिफाइन किया स्ट्रेस को as the non-specific response of the body to any demand, that is regardless of the cause of the threat, the individual will respond with the same physiological pattern of reactions. Now ये definition दिखने में तो बड़ा खतरनाक है, but the meaning is very simple. तो Hans Selye, as we have already studied, is also known as the father of modern stress research. तो उन्होंने स्ट्रेस को अलग तरीके से डिफाइन किया. उन्होंने स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन किया कि स्ट्रेस कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं होता, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, जनरलाइज्ड रिएक्शन होता है हमारे बॉडी का अगेंस्ट एनी स्ट्रेसर या फिर एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन. तो नो मैटर स्ट्रेसर क्या है, नो मैटर द टाइप ऑफ स्ट्रेसर, हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्ट्रेसर विल बी द सेम. इसीलिए हांस सेलिये ने बोला है कि स्ट्रेस इज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एनी स्टिमुलस इवेंट रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रेसर. तो मतलब हांस सेलिये के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक इंसान का जो बॉडीली रिस्पॉन्स होगा अगेंस्ट अ स्ट्रेसर, सपोज अ स्पाइडर, will be the same as the stress response shown by the body against an individual or maybe an examination. उन्होंने कहा कि कोई specific response नहीं होगा, it will be non-specific, मतलब same होगा. No matter the stimulus event, the stress response or the stress reaction will be the same according to Hans Selye. But बहुत सारे ऐसे researchers थे या psychologists थे
जो कि उनके डेफिनेशंस हांस सेली के डेफिनेशन से एकदम एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, हांस सेली के अकॉर्डिंग, स्ट्रेस तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, क्योंकि हर एक स्ट्रेसर, नो मैटर द टाइप ऑफ स्ट्रेसर, सब बॉडी का रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्ट्रेसफुल इवेंट विल बी द सेम. बट रिसर्चर्स ये कहते हैं कि अगर स्टिम्युलस अलग अलग है, अगर स्ट्रेसर अलग अलग है, तो हमारे बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी अलग अलग होगा. तो इसी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स डिसएग्री करते हैं हांस सेली के डेफिनेशन से, बट ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, एंड उन्होंने ऐसे ही डिफाइन किया है स्ट्रेस को. देन वी विल टॉक अबाउट yes. So many researchers do not agree with this definition, as they feel that the stress response is not merely as general and non-specific as Selye suggests. जो मैंने अभी बोला. Different stressors may produce somewhat different patterns of stress reaction, and different individuals may have different characteristic models of response. तो हांस सेली ने तो बोला कि नॉन स्पेसिफिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है नो मैटर द स्टिम्युलस, बट साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स ने बोला कि नहीं, अगर स्टिम्युलस अलग अलग है तो बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी अलग अलग होगा, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से स्ट्रेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं. सम पीपल एक्सप्रेस देयर स्ट्रेस थ्रू क्राइंग, some by being quiet. So अलग अलग लोगों का अलग अलग कोपिंग स्ट्रैटेजीज होता है, साथ ही साथ अलग अलग स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी होता है. So that's why many psychologists don't agree with Hans Selye का definition. You may recall the case of an opening batsman mentioned earlier, जो हमने introduction में पढ़ा था. Now each one of us will see the situation through our own eyes, and it is our perception of the demands and our ability to meet them which will determine whether we are feeling stressed or not. तो ये जो feeling of stress है, whether we are feeling stressed or not, वो डिपेंड करता है कि हम सिचुएशंस को कैसे परसीव कर रहे हैं, और हमारे पास वो रिसोर्सेज है या नहीं उन स्ट्रेसफुल लाइफ चैलेंजेस से डील करने के लिए. सो इट इज दीज टू पॉइंट्स दैट विल डिटरमाइन whether we perceive an event as a stressful event or not. So the way we perceive matters, the way we deal with situation matters, right? तो अगर हमने एक event को perceive किया as something that is out of our control, then definitely we will be stressed. But if we perceive an event कि no, this event can be controlled by us through our action, through our hard work, then we will not perceive that event as a stressful one. तो yes, ये depend करता है कि whether we determine an event as stressful or not on the basis of the perception that we have regarding the situation, and the ability of our body to meet them, whether we have the resources to meet with the stressful life challenge or not. So yeah, so this is very important. Now अब मैंने तो ये बता दिया. अब stress is not a factor that resides in the individual or the environment. Instead, it is embedded in an ongoing process that involves individuals transacting with their social and cultural environments, making appraisals of those encounters and attempting to cope with the issues that arise. तो स्ट्रेस कुछ ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इंडिविजुअल में इनहेरेंटली बाय बर्थ प्रेजेंट होता है या फिर एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है. नो, इट इज़ नथिंग लाइक दैट. बट ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि एक इंडिविजुअल अंडरगो करता है जब वो इंटरैक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ, अपने कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ, राइट? सो यस, तो स्ट्रेस इज़ नॉट अ फैक्टर जो कि इंडिविजुअल में या फिर एनवायरनमेंट में पाया जाता है. रादर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि चलता रहता है इंडिविजुअल में एज द इंडिविजुअल इंटरैक्ट्स विद द सोशल एंड द कल्चरल एनवायरनमेंट्स. जब हम लोगों के साथ, कल्चर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसी से हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है. और स्ट्रेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल अंडरगो करता है एज द पर्सन इंटरैक्ट्स विद द सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट्स. अब स्ट्रेस जो है बहुत डायनेमिक होता है, ये एक मेंटल या कॉग्निटिव स्टेट होता है, और इससे हमारा जो इक्विलिब्रियम है, स्टेबिलिटी है, वो डिसरप्ट होता है. दैट्स वाई यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ अ डिसरप्शन इन होम्योस्टैसिस और एन इम्बैलेंस दैट गिव्स राइज टू रिक्वायरमेंट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ दैट इम्बैलेंस और रेस्टोरेशन ऑफ होम्योस्टेसिस. तो होम्योस्टेसिस मतलब स्टेबिलिटी. तो स्ट्रेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारा स्टेबिलिटी, हमारा होम्योस्टैसिस डिसरप्ट होता है. एंड इस डिसरप्शन को
हम इम्बैलेंस भी कह सकते हैं। तो स्ट्रेस से हमारे बॉडी में हम इम्बैलेंस देख सकते हैं। एंड इससे हमारी एक चाहत होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम रिजॉल्व करें जो भी इश्यूज हैं, और इम्बैलेंस से एक स्टेट ऑफ बैलेंस या स्टेबिलिटी या फिर रिस्टोरेशन ऑफ होम्योस्टेसिस वाली कंडीशन में हम चल पड़ते हैं। The perception of stress is depend upon the individual's cognitive appraisal of events and the resources available to deal with them. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में मैंने पहले ही बताया था कि एक इंडिविजुअल एक इवेंट को स्ट्रेसफुल मानता है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल उस इवेंट को, उस स्टिम्युलस को कैसे परसीव कर रहा है, एंड वेदर द इंडिविजुअल हैज़ द रिसोर्सेज और द एबिलिटी टू कोप विद द इवेंट। तो यही यहाँ पर फिर से लिखा गया है कि डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल का कॉग्निटिव अप्रेजल, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, परसेप्शन कैसा है, एंड वेदर उस इंडिविजुअल के पास वो एबिलिटी, क्षमता या रिसोर्सेज है या नहीं उस स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट से डील करने के लिए। इन्हीं दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है वेदर द इंडिविजुअल विल परसीव एन इवेंट एज स्ट्रेसफुल और नॉट। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम है, साइकोलॉजिस्ट का नाम है लेज़ारस एंड हिज कलीग्स। उन्होंने कॉग्निटिव थियोरी ऑफ स्ट्रेस दिया था। तो दे प्रोपाउंडेड द कॉग्निटिव थियोरी ऑफ स्ट्रेस। तो इस कॉग्निटिव थियोरी ऑफ स्ट्रेस बाय लेज़ारस एंड हिज कॉलीग्स में ये बताया जाता है कि एक इंडिविजुअल एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे उन इवेंट्स को परसीव करता है, कैसे अप्रेज करता है, इंटरप्रेट करता है। अप्रेज करना मतलब इंटरप्रेट करना या फिर परसीव करना। तो कॉग्निटिव थियोरी ऑफ स्ट्रेस बाय लेज़ारस एंड हिज कॉलीग्स स्टेट्स कि एन इंडिविजुअल का स्ट्रेस रिस्पॉन्स विल डिपेंड अपॉन हाउ द इंडिविजुअल इज परसीविंग, इंटरप्रेटिंग एंड अप्रेजिंग द इवेंट। ठीक है, उसका नज़रिया कैसा है रिगार्डिंग द लाइफ इवेंट, उसी पर डिपेंड करेगा उसका रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। लेज़ारस हैज़ डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टू टाइप्स ऑफ अप्रेजल। उन्होंने कहा कि दो टाइप के अप्रेजल हो सकते हैं, परसेप्शन दो टाइप के हो सकते हैं। प्राइमरी अप्रेजल भी हो सकता है, सेकेंडरी अप्रेजल भी हो सकता है। तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस में जिसे किसने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, दे माइट आस्क कि who propounded the cognitive theory of stress. So you have to answer that the cognitive theory of stress was propounded by Lazarus और उनके colleagues. And इसी theory of stress में उन्होंने perception, interpretation, appraisals की बात की कि एक इंसान कैसे appraise करके अपने stressful situation के against एक response generate करता है. So it depends, much of the stress response depends upon how the stressful life event or the stimulus is perceived by the individual. और उन्होंने डिस्टिंग्विश किया दो टाइप के अप्रेजल्स के बीच। पहला तो है प्राइमरी अप्रेजल, उसके बाद है सेकेंडरी अप्रेजल। एक एक करके हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है, सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है। ठीक है, ओके। जब हम प्राइमरी अप्रेजल की बात करते हैं तो प्राइमरी अप्रेजल में एक इंडिविजुअल परसीव करता है जो भी चैलेंजिंग या चेंजिंग लाइफ इवेंट है या फिर स्टिम्युलस है, उससे वो परसीव करता है कि वेदर वो चीज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है इन इट्स कंसिक्वेंसेस। तो जब भी एक इंसान एक स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट या फिर एक चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करता है तो वो प्राइमरी अप्रेजल करता है, जहाँ पर वो परसीव करता है कि ये जो लाइफ इवेंट है इसका कंसिक्वेंस क्या है, क्या ये पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस जनरेट करेगा, क्या ये न्यूट्रल कंसिक्वेंसेस जनरेट करेगा या फिर क्या ये नेगेटिव कंसिक्वेंसेस जनरेट करेगा। न्यूट्रल कंसिक्वेंसेस मतलब नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो पहले प्राइमरी अप्रेजल किया जाता है वेयर द पर्सन विल परसीव द चैलेंजिंग और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन इट्स कंसिक्वेंसेस। तो नेगेटिव इवेंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, देख लेते हैं। तो नेगेटिव इवेंट्स आर अप्रेज्ड फॉर द पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज। हार्म मतलब नेगेटिव इवेंट्स में एक इंडिविजुअल एनालाइज करता है कि इस इवेंट से, इस इवेंट का कंसिक्वेंस क्या पॉसिबल हार्म, थ्रेट या चैलेंज पोज कर सकता है। हार्म का मतलब होता है the assessment of the damage that has already been done by an event. So suppose एक इंसान एक stressful life event face कर रहा है, तो वहाँ पर जब वो प्राइमरी अप्रेजल कर रहा होता है और सपोज उसने एक इवेंट को नेगेटिव
नेगेटिव अप्रेज कर लिया, परसीव कर लिया, तो वो देखता है कि ये हार्म है, थ्रेट है या चैलेंज है। हार्म का मतलब होता है कि डैमेज जो कि पहले से हो गया है उसी को वो एसेस करता है। थ्रेट का मतलब है डैमेज जो कि फ्यूचर में एक इवेंट से हो सकता है। चैलेंज का मतलब होता है दीज आर एसोसिएटेड विथ मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेसफुल इवेंट, द पोटेंशियल टू ओवरकम एंड इवन प्रॉफिट फ्रॉम द इवेंट। ठीक है, तो चैलेंज का मतलब होता है कि यहाँ पर जब एक इंडिविजुअल एक इवेंट को, एक नेगेटिव इवेंट को जब एक चैलेंज की तरह अप्रेज करता है, परसीव करता है, तो वो कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस रखता है ऑफ द एबिलिटी कि वो ओवरकम कर लेगा उस स्ट्रेसफुल इवेंट को। और यस, दिस इज़ द डेफिनेशन। तो फिर से पढ़ लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा कि लेज़ारस एंड हिज कलीग्स गेव द कॉग्निटिव थियरी ऑफ स्ट्रेस, जहाँ पर उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल का स्ट्रेस रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिम्युलस इवेंट डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल का देखने का नज़रिया, परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन या अप्रेजल कैसा है। एक इंडिविजुअल प्राइमरी अप्रेजल भी कर सकता है, सेकेंडरी अप्रेजल भी कर सकता है। एक लाइफ इवेंट को जब एक इंडिविजुअल कैटेगराइज करता है कि वो नेगेटिव है कंसिक्वेंसेज में, पॉजिटिव है कंसिक्वेंसेज में, या फिर न्यूट्रल है अपनी कंसिक्वेंसेज में, तब वो इंडिविजुअल प्राइमरी अप्रेजल कर रहा होता है। जब नेगेटिव इवेंट्स को परसीव किया जाता है तो वो इंडिविजुअल देखता है कि ये इवेंट एक हार्म की तरह एक्ट कर रहा है, थ्रेट की तरह एक्ट कर रहा है या चैलेंज की तरह एक्ट कर रहा है। हार्म का मतलब होता है जो डैमेज उस इवेंट ने ऑलरेडी कॉज कर दिया है। थ्रेट का मतलब है जो पॉसिबल डैमेज ये इवेंट कॉज कर सकता है। और चैलेंज का मतलब होता है कि इंडिविजुअल यहाँ पर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस रखता है कि नहीं, मैं इस इवेंट को ओवरकम कर लूंगा, आई हैव द एबिलिटी टू ओवरकम दिस इवेंट। सो दिस इज द चैलेंज अप्रेजल। तो प्राइमरी अप्रेजल में पॉजिटिव अप्रेजल भी हो सकता है, न्यूट्रल अप्रेजल भी हो सकता है, नेगेटिव अप्रेजल भी हो सकता है। जब इवेंट को नेगेटिव इवेंट की तरह कैटेगराइज किया जाता है तो हार्म अप्रेजल भी हो सकता है, थ्रेट अप्रेजल भी हो सकता है, चैलेंज अप्रेजल भी हो सकता है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरी पॉइंट। और जब एक इवेंट को हम स्ट्रेसफुल मानते हैं तो हम सेकेंडरी अप्रेजल भी बनाते हैं। जब एक इवेंट को हमने ऑलरेडी कैटेगराइज कर लिया है कि नहीं, ये इवेंट स्ट्रेसफुल है, तब हम एक सेकेंडरी अप्रेजल भी बनाते हैं। और सेकेंडरी अप्रेजल में एक इंडिविजुअल खुद को परखता है, खुद को देखता है, खुद को झांक के देखता है कि वेदर आई हैव द कोपिंग एबिलिटी टू ओवरकम द स्ट्रेसफुल इवेंट, whether I have all the resources to cope with the stressful life event। तो यहाँ पर इंडिविजुअल, वो इंसान क्या करता है, देखता है कि उसके पास वो एबिलिटी है या नहीं कि वो उस स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट को ओवरकम करे। सो सेकेंडरी अप्रेजल इज द असेसमेंट ऑफ वंस कोपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज एंड वेदर दे विल बी सफिशिएंट टू मीट द हार्म, थ्रेट और चैलेंज ऑफ द इवेंट। और ये जो रिसोर्सेज है जो इंडिविजुअल देख रहा है, जो इंडिविजुअल एसेस कर रहा है अपनी सेकेंडरी अप्रेजल में, वो रिसोर्सेज मेंटल रिसोर्सेज भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, आई मीन फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकता है, पर्सनल या सोशल रिसोर्सेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेंटल रिसोर्सेज की बात करें तो हम ले सकते हैं कि कुछ लोग बहुत ही जल्दी पैनिक कर जाते हैं, बट देर आर सम पीपल हु आर वेरी काम एंड कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। दे हैव द एबिलिटी टू be optimistic about the life events, and there are some people who are pessimistic. So अगर आपके पास optimism वाला mental resource है, then definitely you'll be able to overcome majority of life challenges very easily, no matter the life challenge. बहुत सारे physical resources भी हो सकते हैं. It can be monetary resources, it can be anything, it might be any physical resource. देन पर्सनल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं या फिर सोशल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। सोशल रिसोर्सेज में देर इज़ इमोशनल सपोर्ट। व्हेन वी हैव द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, then definitely it makes it easier for us to overcome life challenges. So ये इन सब रिसोर्सेज को ही अप्रेज किया जाता है, एसेस किया जाता है जब हम सेकेंडरी अप्रेजल कर रहे होते हैं। अगर एक इंसान सोचता है कि नहीं, मेरे पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, मेरे पास हेल्थ है, स्किल्स है, सोशल सपोर्ट है, ताकि मैं अपनी क्राइसिस से, लाइफ चैलेंज से डील कर सकूं,
तो उस इंसान को कम स्ट्रेस होगा एज कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल जिसके पास एक नेगेटिव एटीट्यूड है, जिसका हेल्थ भी खराब है, जिसके पास कोई स्किल भी नहीं है और सोशल सपोर्ट भी नहीं है। तो उस इंडिविजुअल के लिए वो इवेंट स्ट्रेसफुल होगा। दिस टू लेवल अप्रेजल process determines not only our cognitive and behavioral responses but also emotional and physiological responses to external events. अब appraisals जो होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, उसे बहुत सारे वो बहुत सब्जेक्टिव होता है, मतलब वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो एक इंसान में अलग होगा, दूसरे इंसान में अलग होगा, और ये अप्रेजल्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद सच ए स्ट्रेसफुल कंडीशन। अगर एक इंसान को आगे से एक्सपीरियंस है जहाँ पर उन्होंने एक सिमिलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल किया है बहुत ही एफिशिएंटली, और इससे वो बहुत ही सक्सेसफुली उन्हें ओवरकम भी करके आए हैं, तो फिर दे वुड डेफिनेटली फील दैट दिस इवेंट दैट दे आर फेसिंग नाउ इज less threatening for him or her. Another factor is whether the stressful event is perceived as controllable or not. एक इंसान जो कि एक इवेंट को कंट्रोलेबल मानता है वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा, बट एक ऐसा इंसान जो कि उस सेम इवेंट को परसीव करता है एज समथिंग दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, समथिंग दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, डेफिनेटली वो इंसान ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो अप्रेजल्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पास्ट एक्सपीरियंस पे, जिस इंसान को एक्सपीरियंस है सिमिलर सिचुएशन को हैंडल करके सक्सेसफुली उसे ओवरकम करने का, दैट पर्सन विल फील लेस स्ट्रेस्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। बट एक इंसान जिसके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, दैट पर्सन विल फील मोर स्ट्रेस्ड। सिमिलरली एक इंसान अगर सेम इवेंट को कंट्रोलेबल मानता है, दैट पर्सन विल फील लेस स्ट्रेस्ड, बट एक इंसान जो मानता है कि द इवेंट इज आउट ऑफ हिज और हर कंट्रोल, दैट पर्सन विल फील more stressed. And a person who believes that she or he can control the onset of a negative situation or its adverse consequences will experience less amount of stress than those who have no sense of personal control. ठीक है, तो these are the important topics that we have covered. और उसके बाद हम पढ़ेंगे stress responses के बारे में, जहाँ पर हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स, बिहेवियरल स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इमोशनल एंड कॉग्निटिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हर एक टाइप के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को पढ़ेंगे। यस, सो दिस विल बी द टॉपिक दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।